یہ دیکھو باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں، لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے، سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا، لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا، کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہ تھے، اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا۔ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 1400 سال پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے تک لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے، مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ۔ اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا۔ عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔
मदीना वालों की तादाद कितनी है? बहुत थोड़ी शहंशाह फारस। कासिद ने जवाब दिया, हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूर हो जाओ हमारी नजरों से। शहंशाह उर्दशीर गरजा और जरा सोच कर बोला, कारन को बुलाओ। कारन बिन करियानिस ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दलेर सिपाह सालार था। वो भी हरमस की तरह लाख दिरहम का आदमी था और हरमस की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इत्तला मिलते ही दौड़ा आया। कारन उर्दशेर ने कहा, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हरमस ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कुमक मांगी है? उर्दशेर ने दरबारियों पर निगाह डाली तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए, सब ताजीम को झुके और बाहर निकल गए। उर्दशीर कारन के साथ तन्हाई में बात करना चाहता था। क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया है? मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। कारन ने कहा, मैदान जंग में जरा सी गलती पांसा पलट दिया करती है। अगर हरमज ने कुमक मांगी है तो इसका मतलब यह है कि उसे कुमक की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सकें? उर्दशेर ने कहा, उनमें हिम्मत ही नहीं बेपनाह जुर्रत भी है। कारन ने जवाब दिया, वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। उबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने जमीन दोज हमले करके और शबखून मार मार कर उस इलाके की कई चौकियां साफ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में उनकी सिपाह खासी थोड़ी ही रही और उनके पास घोड़ों की भी कमी थी। वो लड़ने वाले ही ऐसे थे। शहंशाह उर्दशीर ने कहा, इनमें कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया। कारन ने जवाब दिया, और हमारा इतना जबरदस्त सालार हरमज कुमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहंशाह फारस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। हमें अपने गिरबान में दयानतदारी से झांकना होगा। फारस की शहंशाही का तूती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दयानतदारी से लें शहंशाह फारस। हरमज ने अगर कुमक मांगी है तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों का लश्कर उस पर गालिब आ गया है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम ही हरमज की मदद को पहुंचो। उर्दशीर ने कहा, अगर हरमज घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर इससे बेहतर सालार न जाए तो उसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीना को भाग जाएं। फौरन कारन, फौरन। कारन लंबे लंबे डग भरता चल पड़ा। ईरानियों का सालार कारन बिन करियानिस ताजा दम लश्कर लेकर उबला की तरफ रवाना हो गया। वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके लौटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। उसने मजार के मकाम पर लश्कर को दरियाए दजला पार कराया और जुनूब में दरियाए मौक्कल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए मौक्कल के पार गया तो उसे हरमस के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दी। सिपाही बड़ी बुरी हालत में थे। तुम पर जरतुश्त की लानत हो। कारन ने पहली टोली को रोक कर और उनकी हालत देखकर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भाग कर आ रहे हो? सिपाह सालार हरमज मारा गया है। टोली में से एक सिपाही ने कहा, दोनों पहलुओं के सालार किबाज और अनुश जान भी भाग गए हैं, वो शायद पीछे आ रहे हैं। कारन बिन करियानिस हरमज की मौत की खबर सुनकर सुन होकर रह गया। उसने ये पूछने की जुर्रत भी न की कि हरमज किस तरह मारा गया है। कारन का सर झुक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थीं। अपने ताजादम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हरमज की फौज के दूसरे सालार किबाज और अनुश जान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारन ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। कारन ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जा घोड़ा रोका। मैं सुन चुका हूँ हरमज मारा गया है, कारन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग गए हो। क्या तुम गंवार और उजट अरबों से शिकस्त खा कर आए हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? किबाज ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हरमज की शेखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुर्रत वाले सालार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। कारन अनुश जान ने कहा, हमारी फौजी क़यादत में सबसे बड़ी यही खराबी है जिसका मुजाहिरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के इन मुसलमानों को उजड़ और गंवार कहा है। हरमज भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने मैदान जंग में उसके उलट देखा है। तुमने उनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कारन ने पूछा, ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो उनमें नहीं। अनुश जान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जम कर लड़ें और भाग नहीं सकें। इसलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारे सिपाह को पाबंदे सिलासिल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी।
हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं था। किबाज ने कहा, मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मुसन्ना बिन हारिसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा इस्लाम के वो शहदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमीन दोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थीं। उन्हीं की तरगीब पर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इक़दाम था। ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तक़र से दूर हटते हटते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुसन्ना बिन हारिसा के दिल में भरी हुई थी। जंग सिलासिल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा को बुलाया। इब्ने हारिसा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये भागते हुए फारसी जिंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फतह को यकीनी समझोगे? खुदा की कसम वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारिसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है, ये मेरा शिकार है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो जाओ, 2000 सवार अपने साथ ले लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे जांबाज थक गए हैं, लेकिन मैं शहंशाह फारस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताक़ुब करेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चले गए। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताक़ुब हो रहा है तो वो बिखर गए। उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए कुर्ज और हथियार फेंक दिए। मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ताक़ुब का और ईरानियों को पकड़ने का काम दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखरे, फिर वो अकेले अकेले होकर भागने लगे। इसके मुताबिक मुसन्ना के सवार भी बिखर गए। मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसनुल मिराह के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसलिए उसका नाम हसनुल मिराह था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मज़ाहमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने भाई से कहा, मुअन्ना, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई, मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। मुसन्ना ने कहा, हाँ मुअन्ना, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मुअन्ना ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोचकर इधर आया हूँ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं, कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपाह सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं। वो फारस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई, मुअन्ना ने कहा। अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्द शेर अपने तख्त ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछौना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूँ, मुअन्ना ने कहा। नहीं, मुसन्ना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे।
तुम भूल रहे हो कि हम इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है जो फारसियों के ज़िर-ए-नगी थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म व तशद्दुद किया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेंगे। ये मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताक़ुब में नहीं आया, मैं फारस के इस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हरमस की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमक आ रही होगी, मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें न करो मुसन्ना, मोन्ना ने कहा। मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर न लेना। जाओ मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। किसी भी मौरख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसन्ना ने अपने भाई मोन्ना को देकर गए। बाज मौरखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मोन्ना ने इतने से सवारों ही से किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज में मोन्ना से पूछा। हम मुसलमान हैं। मोन्ना ने उससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। औरत ने कहा, ये मेरा किला है, भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। मोन्ना ने कहा, खातून हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं, औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो कलादार ही हो। अगर तुम फारस की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा न हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हरावल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मोन्ना ने कहा, शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाजा खोल दो। औरत की तहकुमाना आवाज सुनाई थी। इस आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मोन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मोन्ना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मोन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। उसके सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मोन्ना ने एक जगह रुककर किले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीरंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मोन्ना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था। औरत ने मोन्ना से कहा, मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम इन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मोन्ना ने कहा, खुदा की कसम तुम बाकी उम्र इनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं दिलों को सर करो, लेकिन किलों वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे थे? किलेदार औरत ने जवाब दिया। जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन हैं जिन्होंने फारस के इस लश्कर को इस कदर दहशतज़दा करके भगा दिया है। हमने जब देखा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुताल्लिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मोन्ना को इस इमारत में ले गई जहाँ वो रहती थी। वो शीश महल था। उसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मोन्ना के सामने लाकर रख दिया। मोन्ना ने उन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मोन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? उस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। मोन्ना ने जवाब दिया, हाँ, मफतूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो उस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे अक्द में न आ जाए। मोन्ना को इत्तला दी गई कि उसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मोन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मोन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था।
اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ مونا کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس علاقے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ عورت نے کہا نہیں، اور سوچ کر بولی لیکن تم چلے جاؤ تو مجھے تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مونا نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو۔ عورت نے کہا، فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مونا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ بات کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ مونا نے زیر لب کہا، محبت؟ پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو، کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کر لو۔ عورت نے کہا، میں نے قبول کیا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔